Hello friends. So I hope that you all are doing good. Welcome to this wonderful, interactive, knowledgeable session of business correspondence and reporting. And today we will be discussing a question paper along with the solutions of January 2021 attempt. So let's forge ahead. I'll share the screen with all of you. Here we go. ये आपका जनवरी 21 का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर है एंड क्वेश्चन नंबर 7 से अपन शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक तो लॉ का पार्ट है। 7th के साथ अपन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को स्टार्ट करेंगे, राइट? सो एज यू ऑल नो, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आता है और वो किससे रिलेटेड आता है? कॉम्प्रहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग से रिलेटेड, राइट? सो लेट्स बिगिन. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अपन पढ़ते हैं पैसेज को साथ में. Success of an organization depends on offering quality products at competitive prices. All over the world, it is being realized that quality control be ensured through inspection and test alone. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंडेंट है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे. और क्वालिटी तो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन और टेस्टिंग से ही पता चलती है. Every department and individual has a contribution to make in the achievement of quality. Quality product at competitive prices is the most significant factor in determining the long run success of any organization. High quality of products can give a competitive edge to an organization. थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे इसको क्योंकि एक आइडिया ही चाहिए अपने को इसकी ब्रीफ. आप लोग भी एग्जाम में इसी प्रैक्टिस के साथ बढ़ेंगे. On the other hand, good quality generates satisfied customers who reward the organization with continued patronage and favorable word of mouth advertising. Growth in consumer quality awareness has put a great strain on business. Consumer demand and dynamic technological changes have opened up new and highly competitive market. The quality of goods and services can no longer be taken for granted. तो यहाँ पर कंज्यूमर क्वालिटी अवेयरनेस की बात कर रखी है. और नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें सर्विस सेक्टर की जो रैपिड ग्रोथ है, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, बैंक्स, हॉस्पिटल्स जो कि सर्विसेज प्रोवाइड्स करते हैं उनके बारे में बात कर रखा है. लास्ट पैराग्राफ. In view of globalization of market, government have begun to realize that quality is essential to international trade and the national economy. Therefore, public purchasing authorities have been instructed to buy goods that conform to the quality standards. तो ये जो पर्टिकुलर पैसेज है आपका, ये कंप्लीटली किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, राइट? सो इन व्हाट मैनर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स can give rewards to organization. एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट किस मैनर में ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड प्रोवाइड कर सकता है? इसका आंसर अपने को बहुत क्लियरली पैराग्राफ में भी दे रखा है कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, एंड दे कंटिन्यू विद पैट्रोनेज एंड फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग. माउथ पब्लिसिटी होती है उसकी. मिला आप लोगों को पैराग्राफ में या बताया जाए? ओके, सो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ग्रेट पेट्रोनेज और माउथ ऑफ पब्लिसिटी की बात करी है. आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में ये मिल रहा होगा. बहुत क्लियरली इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, राइट? तो मैं टिक कर देती हूँ उसको यहाँ पर.
Good quality generates satisfied customers who reward the organization with continued patronage and favorable word of mouth advertising. Right? बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, कहीं से कहीं तक फंसेंगे ही नहीं अपन, पूरे नंबर है इस क्वेश्चन में अपने। सेकंड क्वेश्चन है अपना, most significant factor which determines the long run success of an organization. किसी भी organization की long run success किन factors पे depend करती है? Product अच्छा भी हो और competitive price पे भी हो. So quality product at competitive price is the answer, right? Question number third अगर अपन बात करें, quality of goods and services cannot be compromised by organization. Give reasons. लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि किन रीजंस की वजह से अपन क्वालिटी गुड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अवेयरनेस डेवलप हो रही है आजकल। लास्ट पैराग्राफ्स में पढ़ा है, आप लोग टैली कर सकते हैं साथ के साथ ही। अवेयरनेस डेवलप हो रही है क्वालिटी को लेकर, कंज्यूमर की डिमांड, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट? तो आपको यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा, वहां चले जाओगे। We all are not loyal customers, right? And then question number 4, write the summary of the above passage. इस passage की summary लिखनी है आपको। तो आपको summarized way में लिखना है, तो summary का मतलब होता है 1/3, right? So 1/3 को आप इसमें सिंपल ये बता सकते हैं कि qualitative products competitive price पे मिले, कंज्यूमर अवेयर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अपन ने ऊपर जितने भी आंसर्स लिखे हैं ना, उन आंसर्स को आप ब्रीफ करते जाओ, समरी बन जाएगी आप, राइट? मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2, नोट मेकिंग एंड समरी। सो नोट मेकिंग और समरी में आप लोगों को सबको ध्यान देना है कि समरी तो वही है अपनी 1/3 ऑफ द पैसेज, जो भी पैसेज है उसकी 1/3, राइट? नोट मेकिंग से ही समरी बना सकते हैं आप लोग। सो फर्स्ट देखिए, whether one runs a large business or starting out with a new venture or works as a corporate professional, chances are that at some point one would be required to make a business presentation. आप किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन देनी ही होगी। Whether you are selling a product to a client, sharing your vision with your employees, or looking for new investors for your business, your presentation will always matter. तो ये पर्टिकुलर पैसेज फर्स्ट पैराग्राफ से समझ में आ गया किसके बारे में बात कर रहा है? गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। कैन वी मेक इट अ टाइटल? टाइटल बना दे इसको, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स को बना दिया साहब, ठीक? अब इसमें आप देखिए कितने पैराग्राफ दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, इन टोटल 5 पैराग्राफ्स दे रखे हैं, राइट? तो 5 पैराग्राफ्स यानी 5 सब हेडिंग्स या 4 सब हेडिंग्स, जितने दे रखे हैं या तो उतने बना दो या उससे एक कम बना दो, इससे ज्यादा सब हेडिंग्स नहीं बनानी। सब हेडिंग्स काउंट करने का यही तरीका है, ठीक? फिर उसके बाद में आप लोगों को याद आ रहा होगा अपन ने नोट मेकिंग की बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस करी थी क्लास में। तो आपने ये हेडिंग बनाई प्रेजेंटेशन स्किल्स, फिर आपने सब हेडिंग बनाई 1 2 3 4 करके, उनके सब पॉइंट्स बनाए 1.1 1.2 1.3 करके। अगर 1.3 का सब पॉइंट बनाना होता तो 1.3.1 बन जाता। तो ये नंबरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट मेकिंग में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्रॉपर नंबरिंग, प्रॉपर इंडेंटेशन, प्रॉपर स्पेसिंग, ये चीजें हैं जो नोट मेकिंग में आपके मार्क्स पूरे दिलाती है, नॉट जस्ट द कंटेंट। तो आपने जैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ पढ़ के आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए, आपने जैसे अंडरलाइन कर लिया यहाँ पर
सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस, कि आप चाहे किसी भी तरीके के फील्ड में हो, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तो ये सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपका इंक्लूड हो गया, हाउ टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, राइट। तो दो हेडिंग्स बन गई पहले में कि प्रेजेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, राइट। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे, जब अपन फोर्थ पैराग्राफ पे आ रहे हैं, तो फोर्थ पैराग्राफ में इन्होंने बता रखा है कि ऑडियंस को एंगेज रखें, कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करें, राइट। तो आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट बना सकते हैं कि कंटेंट प्रिपरेशन, और कंटेंट प्रिपरेशन के साथ में गुड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, राइट। तो चार चीजें हो गई, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट कहाँ है, कैसे बनाई जाए, कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए, और अपने आइडिया के बारे में बात हो रही। हमने पैराग्राफ पढ़ते टाइम ये 4 पॉइंट्स अंडरलाइन कर ली, उनको पॉइंट्स फॉर्मेट में शॉर्ट में लिख दिया। तो आप इसमें नंबरिंग सिस्टम देख सकते हैं, प्रॉपर हो रखा है एकदम नंबरिंग का। बहुत मैं शुरू से समझा रही हूँ आप लोगों को, की नोट, नंबरिंग, प्रेजेंटेशन, एब्रिविएशंस बॉक्स में बनेगा, ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग सब, राइट। फिर उसके बाद आपने जो भी पॉइंट्स में समझाया है उसी चीज को आप पैराग्राफ में समझा दीजिए, 1/3 ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमोशनल बैरियर अफेक्ट कम्युनिकेशन। अपन ने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, उसमें इमोशनल बैरियर का पॉइंट पढ़ा था अपन ने। तो इमोशनल बैरियर वाला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा उसको आपको एज इट इज लिखकर आना है, चाहे 1 नंबर में पूछे चाहे 2 नंबर में पूछे, आपको उसका कंटेंट नंबर के हिसाब से कम नहीं करना है, राइट। तो इमोशनल बैरियर्स की जब यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर चीफ बैरियर्स क्या होंगे। तो चीफ बैरियर्स में आपने ये बताया कि इमोशनल बैरियर इज द चीफ बैरियर ऑफ ऑल। कौन कौन से इमोशन, एंगर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, मिसट्रस्ट, सस्पिशन, जेलेसी, एंजाइटी, बहुत सारे फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं। तो आपके जितने भी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। पर्सन अगर अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली पास ऑन ही नहीं कर सकता है। उसका जो नजरिया है, उसका जो परसेप्शन है, वो तो कलर होगा ही होगा। तो ये 3-4 पॉइंट अपन अगर याद करके जाएंगे तो कहां से कहां तक आप पैराग्राफ में गलत लिखोगे बेटा, नहीं लिखोगे, राइट। तो ये आपका पूरा इमोशनल बैरियर आपने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम अपन, रिपल्सिव। रिपल्सिव का इन्होंने पूछा है मीनिंग, राइट। तो रिपल्सिव का मतलब तो परेशान करना, फ्रस्ट्रेट करना, डिस्गस्टिंग, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। दूसरा इन्होंने एंटोनिम पूछा है ग्रेटिफाई का। सो ग्रेटिफाई का एंटोनिम हो जाएगा आपका फ्रस्ट्रेट करना, ऑपोजिट, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको अपने को। The horse died in the night. He said that the horse, थर्ड पर्सन है तो सेम रहेगा, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, had died in the night। बस टेंस का रूल याद रखना है, बाकी सेम, आपको कोई चेंजेस ही नहीं करने। मिल गए 1 2 3 नंबर फटाफट से एक एक लाइन में ही। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रेसी राइटिंग।
प्रेसी राइटिंग में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग ध्यान रखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, राइट इन योर ओन लैंग्वेज, डोंट कॉपी द लैंग्वेज ऑफ द पैराग्राफ. वो जो आप लोग करते हो ना, पहली लाइन कॉपी करी, बीच की लाइन और लास्ट की लाइन गई और बन गई मैम प्रेसी और आ गए हमारे 0. तो ये आप लोगों ने वैसे अब पढ़ लिया है, आप लोग अब इन चीजों से फेमिलियर हो कि आप खुद की लैंग्वेज में लिखोगे, राइट. दूसरा, 1/3 ऑफ द पैसेज, टाइटल आप लोग बनाओगे ही बनाओगे. So, gratitude implies thankfulness or an appreciation of benefits conferred together with a desire, when practicable, to return to those benefits. It should be distinguished from thanks, which is too often a matter of words and not accompanied by a feeling of thankfulness. तो ये जो पर्टिकुलर पूरा पैसेज है आपका, ये ग्रैटिट्यूड की बात कर रहा है, राइट. तो आपका जो टाइटल है वो ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड बन सकता है. ये देखिए आंसर में भी, ग्रैटिट्यूड अ सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, राइट. आप और भी बना सकते हैं, ग्रैटिट्यूड अ वे टू अप्रिशिएट, राइट. ग्रैटिट्यूड सेंस ऑफ थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड अ वे टू अप्रिशिएट. ग्रैटिट्यूड रिलेटेड टाइटल्स आप लोग बना सकते हैं. फिर 1/3 आप लोग अपने हिसाब से, जैसे पैसेज में आपने आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले हमने ग्रैटिट्यूड का मीनिंग लिख दिया, मीनिंग के बाद ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस, और लास्ट में ग्रैटिट्यूड शुड प्रिवेल इन एवरीबॉडी, राइट. तो ये पॉइंट्स आपने बेसिक पॉइंट्स कवर करके अपनी लैंग्वेज में कंपाइल कर दिया. Now moving ahead to question number 9th. Question number 9th पे बढ़ते हैं अब अपन. Question number 9th आपका पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन चैप्टर से. कम्युनिकेशन चैप्टर में सर्किट और स्टार नेटवर्क के बीच में डिफरेंस पूछा है इन्होंने. लिखा हुआ है क्या सर्किट और स्टार नेटवर्क के बीच में? पढ़ा था अपन ने. आपको अगर पूरा एज इट इज डिफरेंस नहीं याद हो और आपको इंडिविजुअल सर्किट नेटवर्क और स्टार नेटवर्क का थ्योरी पार्ट याद हो तो आप वो भी लिख के आ सकते हो. सर्किट नेटवर्क में वो पढ़ा था ना, डायग्राम बना हुआ था, ए ने बी को बोला, बदले में बी ने ए को जवाब दिया, राइट. सो ए ने बी को मैसेज दिया, बी ने ए को उसके बदले में क्या दिया? रेस्पॉन्स. When two person communicate with each other, एक जना मैसेज दे रहा है, दूसरा जना फीडबैक दे रहा है, तो वो कम्युनिकेशन किसका पार्ट बन जाता है? सर्किट नेटवर्क का. और दो लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सेम लेवल के हो सकते हैं. एज इट इज सेम लैंग्वेज पढ़ी हुई है, याद होगी आप लोगों को, अब तो रिवाइज ही हो रहा होगा. स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क है जो इसमें सब सबसे बात करते हैं, ना लेवल का कोई बैरियर है ना डिपार्टमेंट का कोई बैरियर है. जैसे एक टीम है जिसमें अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, बैठे हैं, जैसे एक टीम में फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, राइट. मैनेजर है, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ, सबको ही है भाई. तो सबसे बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं है. जिससे जब जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे आप उससे बात कर रहे हो. तो ग्रुप कम्युनिकेशन और टीम वर्क ये आपके स्टार नेटवर्क में होता है और इसमें आप फ्रीली विदाउट हिंड्रेंस बात कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका, इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इंटरनल चॉइस थी, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो कि आपकी बॉडी के थ्रू हो. इसमें अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फेशियल एक्सप्रेशन, स्टैंसेस यानी बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर, टचेस, फिजिकल सिग्नल्स, लीनिंग फॉरवर्ड, स्माइल, क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स, राइट. ये सारी चीजें आपकी फिजिकल नॉन वर्बल में आएगी. और आप लोगों को याद है
कि फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ इज द कम्युनिकेशन जो 55% कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है ऑफ टोटल ह्यूमन कम्युनिकेशन। मतलब हम आधे से ज्यादा कम्युनिकेशन तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट इन्होंने आपसे पूछा है वोकैबुलरी। नॉस्टैल्जिक का मीनिंग पूछा है इन्होंने। नॉस्टैल्जिक वही पुरानी चीजें याद करना, पुरानी यादों को याद करना, तो होमसिक, राइट। और इकोनोमाइज करना यानी सेव करना, बचाना, ठीक। अब आते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पे। He said to him, please wait till I return. He told him, या he requested, क्योंकि please आ रहा है ना, he requested him to wait here till I को ही के हिसाब से कर दीजिए, he returns। एस लग जाएगा, ही के साथ लगता है, क्योंकि बाकी अपन ने इंपेरेटिव सेंटेंस था तो टू लगा के कनेक्ट किया और पूरा सेंटेंस बना दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट इज ड्राफ्ट अ सर्कुलर टू वार्न द एम्प्लॉइज ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक। तो आपको एक सर्कुलर बनाना है। सर्कुलर इज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, और उसमें आपको ये बताना है, इसमें आंसर में रिटर्न्स आएगा इनडायरेक्ट में, ध्यान रखना, ठीक। सर्कुलर में ये बताना है कि स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करें सारे एम्प्लॉइज को। सर्कुलर नंबर रोमन लैंग्वेज में, डेट लिखेंगे, सेंटर में टाइटल, नॉन पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक फॉर एम्प्लॉइज। सर्कुलर सभी एम्प्लॉइज के लिए होता है। अपन सर्कुलर जनरली कैसे शुरू कर सकते हैं? ऑफिशियल कंफर्मेशन से, दैट दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन कि आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे तो कंपनी को लॉस होगा। सिंसियर रिक्वेस्ट करी और फिर लास्ट में कहा कि जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जिस भी पर्सन ने सर्कुलर बनाया उसका नाम क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लेना, और डेजिग्नेशन भी गिवन हो तो ठीक, नहीं गिवन हो तो अज्यूम करके मैनेजर लिख के आ जाना। मैनेजर ऐसा है जो सब जगह चल जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, how do organizational structure barrier affect communication? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं? याद आया? ये बैरियर का सेकंड पॉइंट था अपना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर में अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो कि सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसेस क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, चेन ऑफ कमांड क्लियर नहीं हो कि सुपीरियर अथॉरिटी कौन है, कमांडिंग अथॉरिटी कौन है, किस इशू के लिए किसको कांटेक्ट करना है, सुपरविजन नहीं हो पा रहा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं है, तो इससे अल्टीमेटली कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी बिल्डअप होगी, राइट। तो ये बैरियर है जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आप कम्युनिकेशन भी प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो ये पॉइंट अपन ने क्लास में पढ़ा था, पॉइंट लाइन बाय लाइन पढ़ा था, याद आ गया होगा। सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, चेन ऑफ कमांड, और लास्ट में रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर नो क्लैरिटी। चलिए अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हैं।
एक्टिव पैसिव में तो परफेक्ट हो गए होंगे आप लोग अब। रामा वॉज मेकिंग अ काइट, अ काइट वॉज मेकिंग कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज बीइंग मेड बाय रामा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी की जगह अपन बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट इज द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर, तो वॉज शॉट कौन सा टेंस है, इसमें पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो वॉज बाद और थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो सीधे सेकंड फॉर्म पे ले जाए, द हंटर, सेकंड फॉर्म शूट की शॉट द लायन, राइट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, father said to his son work hard for success in life, so father advised भी लिख सकते हो, suggested भी लिख सकते हो, advised his son, ये imperative है तो to लगा के जोड़ दे to, और बाकी का as it is same, to work hard for success in राइट। मिल गए 3 नंबर। तो टेंस और प्रोनाउन स्पेशली इन दो चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एन आर्टिकल ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द प्लेजर ऑफ रीडिंग। प्लेजर ऑफ रीडिंग पे 250 वर्ड्स पे एक आर्टिकल लिखना है आपको। पहले आप लोगों को आर्टिकल लिखने का जो तरीका समझाया अगर वो याद है, तो उसमें क्या सीखा था अपन ने, उसमें अपन ने सीखा था कि अपन पॉइंट्स लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे पहले। तो पहले अपन ने प्लेजर ऑफ रीडिंग के बुलेट पॉइंट्स बनाए, फिर अपने पास जब कंटेंट इकट्ठा हो गया सारा तो अपन ने फिर उसको सीक्वेंस में करना शुरू किया। तो अपन ने सबसे पहले टाइटल बनाया द प्लेजर ऑफ रीडिंग, राइट हैंड साइड पे अपन ने बायलाइन लिखी, राइट। फिर उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया लिखना। क्या लिखना स्टार्ट करेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को यहाँ जाना पसंद, सबकी अलग अलग हॉबीज होती हैं, लेकिन इन सब हॉबीज में रीडिंग शुड बी अ इम्पोर्टेंट हॉबी, और ये ऐसी चीज है जो आप सब जगह यूज कर सकते हो। कहीं घूमने जा रहे हो तो भी आप बुक पढ़ सकते हो, बुक नॉलेजेबल भी होती है, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। आपकी फीलिंग्स भी बुक्स से बहुत ज्यादा ड्रिवन होती है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बुक्स के थ्रू ड्रिवन होता है। आप अगर ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ते हो बुक्स में तो आपके एक्शंस में भी सेम पॉजिटिविटी हाईलाइट होती है, राइट। फिर उसके बाद एंजॉयमेंट भी होता है। काफी ऐसी चीजें हैं जो अगर से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग लोनली, इफ नो वन इज अराउंड, देन यू कैन रिलाई ऑन बुक्स। तो बुक्स का तो एक अपना ही अलग जॉय है, राइट। और अच्छी बुक्स चूज करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे ऑथर्स को फॉलो करना, रीडिंग के थ्रू आप राइटिंग स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, राइट। तो इंटेलेक्चुअली मेंटली आप एक फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी में डेवलप होते हो इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इन्हीं चीजों को आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में। Now moving ahead to question number 11th. What do you mean by diagonal communication? Diagonal communication से क्या समझते हैं अपन? तो डायगोनल कम्युनिकेशन एज इट इज आपकी बुक में दे रखा है, बहुत क्लियरली समझा रखा है। डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स के बीच में होता है, राइट। तो इसमें ये डायग्राम बना के बताया भी था मैंने आपको समझाने के लिए।
क्रॉस कम्युनिकेशन। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स के दो अलग लेवल के लोग, दो अलग डिपार्टमेंट के लोग जब आपस में कम्युनिकेट करें, सो दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन हैपेंस टू बी डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। तो आप देख सकते हैं क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स of the organizational hierarchy is described as diagonal communication. दो एम्प्लॉइज जो अलग अलग फंक्शंस से रिलेटेड हैं और जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सबने डायगोनल कम्युनिकेशन आजकल एक कॉमन प्रोसेस हो चुका है। इससे एक तो जिससे आपको जो बात करनी है आप सीधे जाके बात कर लेंगे, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से एक तो आपका मैसेज डिस्टॉर्ट नहीं होगा, दूसरा गलत नहीं समझा जाएगा, मिस इंटरप्रेट भी नहीं होगा। आपने ए को कोई बात बोली, ए ने कुछ और समझा, उसने जाके बी को कुछ और ही बता दिया, हो गया आपका तो कम्युनिकेशन गड़बड़। एग्जाम्पल इसमें बता रखा है, जैसे एक जूनियर इंजीनियर है जो किन से बात कर रहा है, जनरल मैनेजर से। तो जूनियर इंजीनियर और जनरल मैनेजर दो अलग लेवल्स हो गए ना। जूनियर इंजीनियर तो जूनियर लोअर लेवल, जनरल मैनेजर टॉप लेवल, दो अलग लेवल के लोग बात कर रहे हैं, दो अलग डिपार्टमेंट के भी हो गए। जूनियर इंजीनियर तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो गया, जनरल मैनेजर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हो गए। दो लेवल, दो डिपार्टमेंट आपस में बात करें, so that communication happens to be diagonal communication, right? चलिए नेक्स्ट इज पेन एंड इंक का करेक्ट मीनिंग पूछा इन्होंने। सो पेन एंड इंक का करेक्ट मीनिंग है इन राइटिंग। आप वैसे भी देख सकते हो, इसके ऑप्शंस देखकर भी आप समझ जाओगे, इन राइटिंग इसमें दे रखा है। सेकेंड, अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों सही लगते हैं। प्रिफर अगर आप सेकंड करेंगे तो सही माना जाएगा। वैसे आईसीआई ने जो आंसर शीट रिलीज करी थी उसमें उन्होंने फोर्थ को भी सही माना, बट प्रेफरेबली अ स्नेक इन द ग्रास इज अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, राइट। थर्ड इज 20 runs were scored by him। ये आपकी पैसिव वॉइस है जिसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है आपको। सो ही, हिम का ही कर दीजिए, ही सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही स्कोर्ड 20 runs, that's it, simple as that। और क्या चाहिए, राइट। नीचे ये दे रखा है, आप आंसर से वेरीफाई करते जाइए। he scored 20 runs। and the last question, last meaning is applaud। applaud करना यानी अपन बोलते हैं ना give a round of applause, so that means to praise someone। तो flatter करना, praise करना, pray करना या request करना, praise करना, तारीफ करना, right। next question, Mr. ABC is an IT manager in Quick Software Solution Private Limited. Write a mail to on behalf of Mr. ABC to Mr. MNG, dealer of HP laptops, seeking quotation for 100 new laptops of model HP 610. The laptops are required for new branch of Quick Software Solutions Private Limited. मैंने आपको एक चीज शुरू से बताई है कि लेटर राइटिंग और मेल राइटिंग में लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। अपन ने लेटर राइटिंग में कोई पार्ट पढ़ा,
उसका कंटेंट आपके मेल राइटिंग में बन के आ सकता है, राइट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर जब अपन बात कर रहे हैं, सो टू में अपन ने ईमेल आईडी अपन प्रेफरेबली लिखेंगे, टू में फ्रॉम भी लिखेंगे अपन, इससे पहले फ्रॉम लिखेंगे, फिर टू, सीसी बीसीसी खाली छोड़ देंगे। सब्जेक्ट कि हमें लैपटॉप्स की कोटेशंस चाहिए, ठीक है। डियर मिस्टर एमएनजे, इनसे अपन बात कर रहे हैं, this is for your information that we require laptops for our new branch of Quick Software Solutions Private Limited। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अपन मेल में, लेटर में सबसे पहले लिखते हैं कि हमें अपनी नई ब्रांच के लिए लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है। Please send us quotation of for 100 new laptops of model HP 610। आपने ही बता दिया कि आपको किस मॉडल की कोटेशंस चाहिए, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोग लेटर में तो अटैचमेंट नहीं दे सकते हो, एनक्लोज करते हो, मेल में आप अटैचमेंट दे सकते हो। वी आर अटैचिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स विद दिस मेल। प्लीज गेट बैक टू मी इन केस you require any clarification, or also send the quotation as soon as possible। थैंक्स एंड रिगार्ड करके आपने डिटेल्स मेंशन कर दी। तो ये आपका मेल राइटिंग कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से अपन ने ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया बेटा, और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़कर ये समझ में आया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बुक that we have practiced and that we have discussed a lot of times। Nothing is new, right? So सब आपका प्रैक्टिस किया हुआ है, अपन ने बहुत मजे लेकर पढ़ाई करी थी, अपन ने बहुत इंटरैक्शंस करे थे, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, right? So based on those practice based sessions you will continue with your attempt, and I am absolutely sure that you will come out with the flying colors, right? So with all my wishes and the heartfelt wishes from Mittal Commerce classes, we wish you good luck and all the best. Thank you everyone. Stay safe.